मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर बच्चे फेल करते हैं तो ये बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो फेल कर गया, और इसलिए बच्चों को फेल किया जाए और टीचर्स को उसकी जिम्मेदारी दी जाए कि ये बच्चा फेल क्यों कर गया। दूसरा, जो अनीता ने और श्रीनिवास ने भी बहुत ही क्लैरिटी से कहा कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी की जो बात हो रही है वह केवल एक सेंट्रलाइज्ड बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हो रही है। मैंने 7वीं में भी बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था, तो 5वीं में भी तो एक बोर्ड एग्जामिनेशन होता था उस जमाने में। ये केवल बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात हो रही है। स्कूलों में जो CCE हो रहा है, जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट कह लें उसको, तो वो क्यों नहीं करते हैं। और दूसरा, बहुत सारे सवाल हैं जो जिन पर सवाल हो सकता है। मैं मैथमेटिक्स में 7वीं क्लास का, मैं अंग्रेजी में 10वीं क्लास का, और सोशल साइंस में, हिस्ट्री में मैं अधिक से अधिक BA का अपने को आंकता हूँ। पर यहाँ बच्चे सारे सब्जेक्ट्स में एक जैसे उनको आंकने पड़ते हैं। इन तमाम सारे सवालों पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। पर फेल करने का जो एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि डिटेंशन इसलिए ख़त्म किया जाना चाहिए कि बच्चे फेल नहीं करेंगे, तो आपको मालूम कैसे होगा कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। एज इफ सीखने की पूरी जिम्मेदारी बच्चों की है। आप एक पूरा व्यवस्था हो, सिस्टम हो, सारा कुछ हो, उनकी कितनी जिम्मेदारी है और क्या इसके लिए टीचर वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। तो मैं तो कहता हूं कि हर एक क्लास में बोर्ड लगा दो, हर क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन लगाओ, और जो जो टीचर उसके लिए जिम्मेदार है, जिन जिन के लिए, उनको उनकी पहले तो इंक्रीमेंट खत्म करो, फिर उसके बाद उनका सैलरी कम करते जाओ, और उसके बाद पनिशमेंट दो उनको। इज दैट एक्सेप्टेबल टू अस? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Hema Ramanathan. I teach at the University of West Georgia. I'm sorry I don't speak enough in Hindi to make myself understood in a topic like this. My Hindi is very, well, not good. Talking about teacher responsibility and student responsibility, talking about teacher decisions of whether students should be detained or retained or not, have been talked about at both the philosophical level and the practical level. And it looks like we've not really made a connection between the two. On the whole, I think all of us are agreed that teachers and students need to take responsibility for their teaching and their learning for student success. Where the rubber hits the road is when students cannot or do not take responsibility, and teachers are expected to take responsibility for what is beyond their means and beyond their capacity to make a change. I don't think we really give teachers that kind of credit about what they cannot help. And that is what we need to be thinking about. I'm not going to talk about professional development and how that works. We know it's the pits. That's a marsh. But that's really where things need to begin there. If you want to change people's beliefs about children, about students, you do not begin with an 18-day professional development that does nothing but tell you how to teach or what you teach. So till we give teachers a chance, a real chance over 2 or 3 years to examine what they think about teaching and learning, what their beliefs are about students, I don't think we have a right to ask them to do something that they are not prepared for. So what we are asking now of teachers on a philosophical basis is to take the brunt of what we believe in, not what they believe in. When do we have the right to do that? We don't do that with our children. We don't tell our children when they are 15 and 20 and 22 what they should do with their lives. What gives us the right to tell teachers what they should believe and how they should act? And that is not treating teachers like they're professionals. And treating them as professionals doesn't begin and end with, are they deputed to activities that are not part of their teaching. That's only one aspect of it. We do not treat teachers like professionals. Till we begin doing that, we don't have a right to ask them to do what we want them to do, because we think it is the right thing to do. तो फिर मैं ये
बोलना चाहूँगी कि मैं इफ्तिकार साहब की बात से थोड़ा सा ताल्लुक एग्रीमेंट थोड़ा सा ये रखती हूँ कि हाँ, बच्चों को जो फेल करने वाली बात है ना, या जो टीचर के ऊपर बोझ है, वो तो है, एक हद तक बोझ है, लेकिन ये भी हमें देखने की बात है जब हम एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देते हैं कि 10,000 बच्चे या 5,000 बच्चे और इतने क्लासरूम, मुझे लगता है थोड़ा हमारे पास डेटा भी होना चाहिए कि कितने ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पर इतने सारे बच्चे तादाद में बच्चे हैं और इतनी कम टीचर्स हैं। जब हम ये आंकड़े देखने बैठेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम केसेस होंगे। दूसरी बात मुझे बड़ी चिंताजनक ये लगती है कि जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, खासतौर पर डिसेबल्ड बच्चों की, तो मुझे बहुत चिंता होती है कि आप निज़ामुद्दीन के प्रिंसिपल हैं और जहाँ पर डिसेबिलिटी की संख्या ज़्यादा है, हमें मालूम है, और हमें ये भी मालूम है क्योंकि हम आगा खान फाउंडेशन और भी कई कार्यक्रम चलाते हैं, वो सारे बच्चे, लगभग सारे बच्चे, मात्र एक डिसेबल्ड बच्चा स्कूल आ पाता है, बाकी सारे डिसेबल्ड बच्चे घरों में हैं। तो हमें, मुझे लगता है थोड़े से हमें दिमागी खिड़कियाँ खोलनी पड़ेगी कि हम उन्हें किस तरह से स्कूल से जोड़ सकें और केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन ना लें कि 800 बच्चे टीचर को मिलेंगे। हमें कोई और तरीके सोचने पड़ेंगे, कहीं और से मदद मांगनी पड़ेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी भारत के उतने ही नागरिक हैं। और तीसरी बात जो अनीता जी और प्रवीण जी ने कही कि परवीन सॉरी हमारे यहाँ बहुत सारी प्रवीण है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरे ख्याल से कि टीचर्स को शायद अगर हमने जोड़ा होता है, इनफैक्ट इफ्तिकार साहब ने भी ये कहा कि मुझे कभी इस तरह के सेमिनार में बुलाया ही नहीं गया। एनसीटी के स्कूल में पहली बार शायद हो रहा है कि इस तरह के लोग आ रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी कि इस तरह के लोग आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स को हमने इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व ही नहीं किया। छोटी सी बात होती है, AIB का एक स्टूपिड सा रोस्ट था, उस पर इतना मीडिया टाइम खर्च किया गया, इतना ज़्यादा मीडिया टाइम खर्च किया गया। वो एक प्राइवेट इवेंट था जिसमें लोग खुशी से पैसा दे के गए थे, लेकिन राइट टू एजुकेशन की जो वीकेस्ट एरियाज थे, मीडिया ने केवल और केवल उनको हाईलाइट किया, उसकी जो अच्छी बातें कभी भी हाईलाइट नहीं किया। तो मुझे लगता है NCERT को, ये मुझे नहीं मालूम कौन, एक मीडिया एजुकेशन प्रोग्राम की यार, जो तुम इतनी बकवास चीज़ों पे इतना न्यूज़ टाइम वेस्ट करते हो, ये देश के भविष्य का सवाल है। हमारे आज 30% हम यंगेस्ट नेशन अपने आप को बड़ी खुशी से कहते हैं, तो वी नीड टू इन्वेस्ट। हम जो अंग्रेजी में कहावत है, if we spend peanuts we will get monkeys, and unfortunately we are spending peanuts, so we will have no one to blame as to what is the quality of our human resource. I shudder to use the word, but I can't think of a better word, but the quality of our human resource. जो livelihoods में काम करते हैं, they'll say, oh, India is a country which has unemployable. I think we should all be ashamed to use the word, they are unemployable. So who is responsible? We are. दो चीज़ें बस मैं कहना चाहूँगी कि हम जब कहते हैं कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए, बच्चों को फेल करना चाहिए क्योंकि वो डर नहीं रहे हैं, उनमें वो डर नहीं है, इसलिए वो पढ़ नहीं रहे हैं। सो एक बात ये पूछना चाहूँगी कि क्या हमारे एग्ज़ाम्स, जैसे अनीता जी और प्रवीण जी ने बोला, हमारे एग्ज़ाम्स उनकी सही समझ को परख रहे हैं, आँक रहे हैं, क्या हमारे एग्ज़ाम्स सही हैं? और दूसरी बात, डराने की बजाय अगर हम ये चाहें कि वो चाह के पढ़ें कोई भी चीज़, लाइक ये एग्जाम्पल शायद मैंने पिछली बार भी लिया था, फर्स्ट जॉब मेरी एज मैथ टीचर लगी थी, तो मैं क्लास में बच्चे को 146 + 98 करना सिखा रही थी, 6 + 8 14, एक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ऑल दैट, एंड एक लड़का बोला मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। वही बच्चा बाहर गिल्ली डंडा खेल रहा था, आप सब जानते हैं गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं, तो गिल्ली डंडा खेल रहा था और बड़ी ही आसानी से वो एस्टिमेट कर रहा था कि मैं इतनी दूर गिल्ली मार के पहुंचाऊंगा तो मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए, और अगर मैं डबल शॉट मारता हूँ, एक बार उठा के दूसरी बार मारता हूँ, तो वो डबल हो जाते हैं मेरे पॉइंट्स बड़ी ही आसानी से। ये 146 + 98 तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। तो जब उससे पूछा गया कि बच्चे ये तो तुम कर रहे हो बहुत आराम से, तो ये मैथ थोड़े ही है मैम, मैथ तो वो है 9 + 8 17, एक कैरी फॉरवर्ड, वहाँ से बोरो करो। सो ये जो चीज़ है, जैसे अनीता जी ने भी कहा, प्रवीण जी ने कहा कि क्लास की मैथ और बाहर जो डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आउटसाइड वर्ल्ड, वो बहुत प्रोमिनेंट है। सो हम डरा क्यों रहे हैं बच्चों को, हम उनमें चाह अगर पैदा करें तो ये फेल पास की बात ही नहीं आएगी। Genuine and sincere frustrations in the teachers. One is what KP says, Mohanan says. Mohanan is a professor in Institute of Science Education and Research, Pune.
I had a mail with him, and he responded. Says, thing is, class 5 the child has to reach. That there is something called some prerequisites which is needed for class 5, which I think Professor Singler and the principal also pointed out. I should have learned some addition, some multiplication, without which the child is in class 5, then the teacher really gets frustrated. One is, okay, I take some time, I teach, but still the child is unable to cope with, then what will I do? That is one thing. Second thing, RTE says primary education up to class 8, elementary education should be as far as possible in the mother tongue of the child. Unfortunately, the Aswaras has really helped the states and the school systems not to give education in the mother tongue of the children, particularly in the minority context and tribal context. So, children are forced to study in the language, the medium of the language, which is not their own. So, that also serves the purpose of cumulative disadvantages of, I have to learn, for example, children of where we went yesterday for 10 days, myself and Srinivasan. We found the teachers have to teach English as probably third or fourth language. First of all, the tribal language is the mother tongue, which is not taught in the school. Then they have to study in Hindi, and then comes probably the local dialect first, then Hindi, then English. It's a kind of gradual stepping. The teachers imagine themselves without knowing that. So, language learning is more or less the same, but the child should be given opportunity to learn in the mother tongue, which is not happening, which actually is a disadvantage. So, third thing is from my point of view, without ensuring any facility for the teacher in the school, I have to teach ideally 30 children in the classroom. I am forced to teach I am talking about classes 6, 7, 8 in some states, including Jharkhand and Chhattisgarh. There are 120 children in my class. The system has not ensured any facilities, but I expect that everybody should learn, I should teach. Then third thing is the age appropriate admission. So the child is 10 plus without having gone to school any level. So I am 10 plus, I will be admitted in class 5. How will the teacher tackle that? So this is third thing. We also have to respect the teachers have lives. They also have their whims and fancies. So how, and they also have been kept in dark ignorance. That as far as my knowledge goes, we have been done a lot of advocacy with the teachers on the act of RTE. And now the B, as Professor Singler has said, now only B.Ed curriculum, pre-service curriculum is including in the state I am talking about, based on the NCT's regulations, guidelines, the RTE is going into the pre-service teacher training. And most teachers are not actually not aware of the intricacies of the RTE Act. Yes, assessment should not be there of learning. Assessment should be there for learning. And we should not talk of threatening our kids with exams, but we should talk of motivation and talk of the methods we should apply. Thanks. मैम ने जो बताया, मैंने तारे ज़मीन पर मूवी देखी थी, उसमें वो बच्चा जो होता है डिस्लेक्सिया होता है उस बच्चे को, तो जितने भी सारे टीचर्स होते हैं जो उसके प्रीवियस टीचर्स होते हैं नहीं समझ पाते उसकी मेंटालिटी को, लेकिन उसके बाद जब एक टीचर आता है ऐसा जो उसकी मेंटालिटी को समझता है और उसे मतलब और चीज़ों से रिलेट करके उसे पढ़ना सिखाता है, मतलब उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो पढ़ सकता है, लेकिन बस उसके तरीके होने चाहिए पढ़ाने के अच्छे। ऐसे ही कराटे किड मूवी थी, तो कराटे किड मूवी में भी जो सीधा कराटे नहीं सिखाता उसे, वो ऐसे तरीके सिखाता है जिससे वो कराटे डायरेक्टली सीख जाए। वो उसे ट्रेन नहीं करता कि ऐसे करो, वो डायरेक्टली सिखाता है कि आप एक पोछा उठाओ या फिर ये शर्ट पहनो या फिर ऐसे करो वैसे करो, इस तरीके से सिखाता है। स्टेप्स वो अपना आप सीख जाता है कराटे। तो हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि मतलब बाहर की चीज़ों से रिलेट करके कि वो खुद क्लास में इंटरेस्ट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी आई विल शेयर विद यू जितना भी एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जो एज ए कम्युनिटी टीचर जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे सिलेबस हैं उनको ही फोकस किया जाए।
बेशक हम जो पढ़ाते हैं वो कई एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक सब्जेक्ट को लेकर या एक लेसन है हमारा उसको एक दिन में कंप्लीट किया जाए, या फिर होता है कि हाँ कुछ भी है लेसन में, तो ज़रूरी नहीं कि उसे पढ़ाया और रेट करवाया और जो एक्सरसाइज दी गई है जस्ट वो करवाया, बच्चे के समझ में आ गया। इसमें ही एक लेसन में हमें कम से कम 5 से 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि एक एक एक्टिविटीज़ को करवा कर बच्चों के साथ में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कॉपी में करवा कर या फिर उन्हें रिटन वर्क करवा कर, बहुत तरह से लेसन को कवर किया जाता है। मैं ये समझती हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा था एज ए गवर्नमेंट स्कूल उस टाइम में और आज के टाइम में मुझे बहुत फर्क नज़र आता है कि मैं क्या बोलना चाहिए, मैं फख्र महसूस करती हूँ कि जितना बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, जितनी अच्छी तरह से लेसन को कवर करवा सकती हूँ, उतनी कोशिश रहती है मेरी बाकी कलीग्स की भी और मेरी भी कि हाँ उस लेसन पे जितना कुछ दिया गया है कम से कम उसमें से 1/3 तो हम कवर करवा ही दें। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। जब मैं नॉन डिटेंशन पॉलिसी के बारे में सोचती हूँ तो आई एम थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन राइट नाउ वी आर इन, और it's not like detaining this child or not detaining the child is going to solve a problem here कि एकदम से हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाएगा। पर मुझे लगता है फिर भी इस सिचुएशन में not detaining a child probably would give more space for the education system to work on other issues. So if you detain the child, you're actually taken that possibility from the child कि कुछ बेहतर हो भी सकता है। So keeping the child in the school, even if the child हमारी उसकी लेवल तक नहीं सीख रहा है, these grading 1, 2, 3, 4 is in our heads when we say कि हमें इतना syllabus complete करना है, but I feel it gives us and the education system that space to change other things and still have the child in the school कि possibly one day when things will change, you are still in school and you can learn better. That is what I think about the policy. एग्ज़ाम का बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है ना। बच्चों को फेल होने का उनके ऊपर बहुत गहरा असर होता है और वो विद्यालय छोड़ जाते हैं या अपने आप में ये सोच लेते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम आगे बढ़ सकें। तो लेकिन आज उसके बावजूद भी जो टीचर की जो मानसिकता जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो टीचर की मानसिकता है वो यही है कि एग्ज़ाम होने चाहिए। तो सवाल यहाँ ये है कि जिस बात को हम यहाँ कर रहे हैं ये बात टीचर तक या जो समझ हमारी यहाँ बन रही है ये समझ टीचर्स तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है। इसके लिए क्या हमने कोई व्यवस्था की है या हम जिस चीज़ के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ये चीज़ टीचर्स तक कैसे पहुँचे इसके बारे में क्या हमारी कोई योजना है। तो असली जो मसला है वो ये है कि टीचर्स तक ये समझ पहुंच नहीं पाती है जिसकी बात हम कर रहे हैं। 2005 में करिकुलम बना, नई शिक्षा नीति आई, किताबें भी बनी, लेकिन उसको इस स्कूल में आते 5 साल लगे। 2010 में NCERT की बुक्स यहाँ लगी हुई। तो ये जो 5 साल लगे और उस किताबों को लगने के बाद भी आज भी टीचर्स की समझ ये नहीं है कि उनको पढ़ाएं कैसे। उनको लगता है कि ये शब्दों से या पूरी कहानी है, पूरी किताब है, ये तो बच्चों को पढ़ाएं कैसे हम तो काका सिखाएंगे बच्चों को। आज भी टीचर्स की समझ वही है। क्यों? क्योंकि क्या उनको कोई ट्रेनिंग दी हमने तो या उसकी कोई व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी जिस चीज़ पे भी हम बड़े स्तर पे हम बात कर रहे हैं उस चीज़ को वो चीज़ टीचर्स तक कैसे पहुँचे उसकी एक व्यवस्था या योजना हमें बनानी चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा। शुक्रिया। I think where we are and where we want to be and our approach to constructivism and student self-empowerment and students taking responsibility and respecting student self-esteem, which is where we want to go. And the teachers we have and their understanding of the textbook, the syllabus, the exam. And I think that's the gap that we have to bridge through professional development, through such dialogue, through whatever, because we have teachers who don't know
anything better than, you know, reading the textbook and doing the questions at the end. So I think that's the challenge for all of us here, and I think that's the responsibility for all of us here. Clearly, we don't want retention. We want an inclusive system. We want everybody to access education. We want people with disabilities, with different backgrounds, and you know, we don't want gender disparity. We don't want race disparity, religious disparity in our schools for sure. But we need to empower the teachers. We need to give them a teaching materials or a curriculum that can help them, that's relevant. Again, I think we brought up the issue of how we teach maths or how we teach social science, and there's no real life connection, so students don't want to learn. So how do we change that, where again we have a very good document in the NCF, but how do we transact that in the classroom that is not completely textbook driven, that's not totally exam driven. And yes, I'm sure we all want a place where students learn. Right now the whole challenge with exams is it's about, you know, passing the test. It's not about student learning. Nobody really knows what the student can know or understand or can do. So how do we empower students? And firstly, empower teachers so that they have the tools to help students. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सायरा। मैं आगा खान फाउंडेशन में एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर हूँ और मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। हमारी बस्ती है, बस्ती दिलार नगर के लोगों में एक तो उनके बच्चों को पढ़ाई, माँ बापों का कोई सपोर्ट नहीं मिलता पढ़ाई लिखाई के लिए। एक बच्ची है वो मैं उसको जानती हूँ, शुरू से मेरे एक्सेस में पढ़ती थी। वो उसका 12th का एग्ज़ाम था और लास्ट टाइम तक उसको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया स्कूल से। लास्ट वाले दिन वो स्कूल गई तो उसको कह दिया गया तुम्हारी अटेंडेंस कम है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं जब सरकार ये चाहती है कि बच्चे पढ़े, 8वीं क्लास तक बच्चे को क्या वो पढ़े ना पढ़े उसे पास कर दिया जाता है, तो क्या उसको कम अटेंडेंस की वजह से उसका पूरा साल खराब कर दिया जाएगा? When the child performs in the class, there are various reasons why he wants to do better. First, probably he wants to learn something new, or he wants to learn better for a work, or he wants to compete with his friend, or he wants to impress his girlfriend. The reasons could be many, but he wants to perform. When he wants to perform, it is within his capacity, he is taking a decision. When he is not able to perform, it could be because he is physically not fit to learn, or there could be a problem at home, parents are fighting or the birds are divorced, or his slum is being demolished, he has to shift, or he is not being convinced in the class why he has to learn this. But all these are external factors, it is beyond his capacity. So it is the responsibility of not the child but of the institution to ensure his growth. Secondly, if he is failed in junior classes, that time he is not in a position to decide for himself what he has to do in a life. Suppose he is being promoted to class 5, 6, 7, 8. So over a period of time he is getting maturity, he knows his options. Probably he might choose a vocation course or choose a job for which he will be better prepared to find an alternate. So if you fail him in the earlier stages, when he is not prepared, when he is not mature, when the reasons are beyond his control, I think this is not right. पिछले कुछ सालों से I have been a teacher and now in the capacity as a teacher supervisor to young teachers, I work with Teach for India. मैम जो आगा खान फाउंडेशन से मैम थे, आपने एक पॉइंट बोला था कि ऐसे स्कूल्स बहुत कम होंगे where there are not 100 students per class or 60 students per class. HRD मिनिस्ट्री का डेटा that we often quote is कि 12 लाख टीचर्स की शॉर्टेज है, 2010 का डेटा था, और in 2011 5.23 lakh posts vacant थी, which are visible in the ground also. इंडिया में 11% प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ एक ही टीचर है, जहाँ पे बच्चे 30 हो, 40 हो, 120 हो या 500 बच्चे हों प्राइमरी स्कूल्स में, बट देयर आर 11% स्कूल्स जहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर है और उसको एडमिशन का करना पड़ेगा, पैसे भी बांटने पड़ेगा, फिर पढ़ाना भी पड़ेगा. सो देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज. एंड हिमा मैम ने जो पॉइंट बोला कि हमने प्रैक्टिकल बातें
सुनी इफ्तिकार सर से, और फिलोसॉफिकल लेंस भी सुना परवीन मैम से और अनीता मैम से और श्रीनिवासन सर से। तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी एंड अ सिस्टम हमारे लिए सवाल यही बन जाता है कि उस टेंशन को रिजॉल्व कैसे करें बिटवीन द प्रैक्टिकलिटी एंड द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। And I 100% agree with you, ma'am, कि it gives us no right to point fingers at teachers at all. जब हमने उनको mindsets को बदलने की तो दूर, उनको खरोचना भी नहीं अभी शुरू किया है। जब हम articles तो लिख देते हैं, रोहित धनकर wrote a beautiful article in which he said teacher training word should not be used, teacher education word should be used. पर हमारी ट्रेनिंग सी far and few in between होती है, and this is coming from the data and the practical experiences. My mother has been a teacher in a government school, and I, in my enthusiasm, when I read NCF 2005, started explaining her कि मम्मी ये करो, ये constructivist approach है, Vygotsky को quote किया, and she said यार बेटा मुझे मत बता तू, मेरे 80% मार्क्स आए थे इन सर्विस ट्रेनिंग में जो NCF का टेस्ट हुआ था। तो ट्रेनिंग एंड आई नो वो मार्क्स कैसे आए थे, एंड आई नो उसके आंसर कीज कैसे मिलेंगे टीचर्स को, एंड आई हैव गिवन ट्रेनिंग टू द टीचर्स ऑन NCF 2005, एंड आई नो उनके आंसर कीज गूगल की कौन सी साइट पे पड़े हैं उन ट्रेनिंग्स में। तो आई थिंक जो सिंक्लेयर मैम ने बोला कि ये जनरेशनल चेंज होगा, इसको एक पीढ़ी लगेगी, 50 या 60 साल लगेंगे। जैसे हमने जब 25 साल, मैं तो सोच रहा हूँ अगर 100 साल में भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी हम एक्सेप्ट करते हैं कि वोटिंग हमारा राइट है, और पंचायती राज को कुछ थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू किया है, जिसके तहत पे हमने SMC स्टार्ट की है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, पर उसमें भी देयर हैज बीन बिग पुश बैक बाय टीचर्स, बाय प्रिंसिपल्स एंड बाय सोसाइटी इटसेल्फ कि वो कैसा होगा। आई थिंक सेम विद दिस आइडिया, we have to be patient enough but consistent enough ताकि वो हम इसको 25 या 50 साल दें, so that it sustains. Thank you. मेरी क्लास के बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और पेरेंट्स भी उनको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको डिटेंशन का डर ही नहीं, उन्हें पता है कि वो आगे क्लास में पहुंच जाएंगे, तो इसलिए वो उन्हें पेरेंट्स को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा उन्हें देखने में, और बच्चों को भी कोई डर नहीं रहा है। फिर पर मैंने इसमें थोड़ा सोचा बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो बच्चे मे भी इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि टीचर्स ने वो प्रोवाइड नहीं कर पाया, बच्चों को समझ नहीं पाया कि कैसे पढ़ाऊँ मैं उन्हें, कि क्यों नहीं समझ पाया। उनका जैसे इफ्तिकार सर ने कहा था उनके लेवल डिफरेंट है। मैं 7th क्लास में अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, एक लेवल से लेकर 7वीं लेवल तक के बच्चे हैं, तो मैं उनकी नीड्स को कैसे केटर करूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो क्या हम सिस्टम को इस तरीके से नहीं देख सकते कि क्लास का कंसेप्ट ही भूल के एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि हमें पता ही नहीं क्लास क्या होता है, बट शुरू के 5 साल में जब 5वीं कक्षा तक है, बच्चों को सिर्फ सिखाई जाए स्किल्स और कुछ आउटसाइड नॉलेज, इनके वैल्यूज़ के बारे में, या जस्ट जनरल नॉलेज अबाउट एजुकेशन, जिससे कि जब 5 साल के बाद उनको परखा जाए किसी चीज़ पे, और उस लेवल पे जिस लेवल पे वो 5 साल के बाद आ गए हैं, फिर उनको क्लास में बांटा जाए। क्लास भी वर्ड यूज ही ना करे, क्लास अगर क्लास वर्ड ही नहीं यूज होगा तो डिटेंशन का डर ना पेरेंट्स को रहेगा ना सिस्टम में कहीं आएगा। तो मतलब मेरा मानना ये है कि सिस्टम इस तरीके से बदलना चाहिए। जो आप लोगों ने कहा कि टाइम लगेगा, तो सिस्टम को RT एक्ट परफेक्ट ही नहीं है, और करिकुलम का बोझ भी रहता है। सेकेंडरी क्लासेस में करिकुलम का बोझ आ जाता है, प्राइमरी में नहीं रहता है। अगर प्राइमरी में उन्होंने बच्चे को इसी तरीके से तैयार किया है कि वो आगे की चीज़ें समझ सकता है, हम ये नहीं चाहते कि उसे सब कुछ सीखे, बट उसे स्किल तो आ जाए वो चीज़ जो आगे जाके वो यूज़ करेगा। जैसे श्रीनिवासन सर ने कहा था कि हम रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते, जॉब में क्या करेगा जो हमने पढ़ा है, तो वो चीज़ें हम सिखाने में ज़्यादा जोर डालें, ना कि करिकुलम कंप्लीट करवाने में। पर अगर RT एक्ट कह रहे हैं कि करिकुलम कंप्लीट करवाना है, तो वहाँ पे किस तरीके से उसे मॉडिफाई करेंगे। मेरा मानना तो यही है, क्लास का कंसेप्ट ही हटा ना, क्लास रहेगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई डिटेंशन क्या होता है। जैसे जैसे उसका दिमाग डेवलप हो गया है, जैसे उसे नॉलेज मिल गया है, आगे का सिखाते रहो। तो बार बार यूज हो रहा है डिटेंशन, और इट गेट्स इंटरचेंजेबली गेट्स यूज्ड विद दिस वर्ड फेलियर, असफलता, नाकामयाब होना। मुझे लगता है कि ये इतना वैल्यू लोडेड है। पहले शब्दों को अगर हम थोड़ा सा टटोलें कि उनका मतलब क्या है, तो बच्चा फेल होना यानी कि कुछ है जो द चाइल्ड हैज फेल्ड, आई मीन वो एग्जाम भी नहीं, वो बच्चा फेल हो गया है। तो इसके जो मीनिंग है
वो क्लास में, स्कूल में, समाज में, सब में ये फेलियर होना और कामयाब होना, इन दोनों के बीच में जो हम डिविजन्स बना देते हैं और उसके माध्यम से जब हम आंकलन करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक हो जाता है। और इसलिए शायद हम चाहते ही हैं, और ये शब्द एक और जो बार बार इस्तेमाल किया गया, डर, भय, अगर बच्चा नहीं डरेगा तो कैसे होगा, और वो इतना लेजिटिमाइज्ड है सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, मुझे लगता है कि इसी से हमारा पूरा समाज बन रहा है। और आजकल तो हम डर को एज अ करेंसी यूज कर रहे हैं। हम टेरराइज करने को अगर हमारा समाज मानता है कि ये एक जायज़ तरीका है एक तरीके के बिहेवियर को, चाहे एग्जाम में मार्क्स हो या समाज में किसी तरीके से बिहेव करना हो या असेंबली में कुछ बोलना या ना बोलना हो, अगर हम टेरर को एज अ करेंसी यूज करने लग जाएंगे, फियर को लेजिटिमाइज कर देते हैं, तो हम एक बहुत खतरनाक समाज की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि समाज का स्कूल पे और स्कूल का समाज पे असर पड़ता है, इसलिए हमें बार बार इन चीज़ों को टटोलना पड़ेगा कि हम कहीं अनकॉन्शियसली इस प्रवृत्ति को तो नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। ये मुझे लगता है ज़रूरी है और इसको जहन में रखते हुए हम अपने बातचीत करें। मेरी जो क्लास में बच्चे हैं वो 13 से 18 ईयर्स के और अलग अलग स्कूल से आए हुए होते हैं। यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है कि क्लास में जिस तरह से वो इवैल्यूएशन करना चाहिए, तो हमारा जो करिकुलम होता है इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड। तो यहाँ पे जो पहली बार मैंने 1 साल पहले बच्चे को मेरे को बात करना या कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात करना उनको डर लगता था, बट अभी हमारा जो करिकुलम में हम करते हैं कि इट्स नॉट ए कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग, बट हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टिविटी बेस करते हैं जहाँ पे हम चाहे बाहर लेके जाएँ या कोई थिएटर सिस्टम, थिएटर के रोल प्ले से, माइंड मैप से, इस तरह से जहाँ बच्चे ढूंढने लगे उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी। सो अभी क्या हो गया कि 1.5 साल के बाद बच्चे इतने खुल गए हैं, वो स्कूल ना जाके मतलब स्कूल जाए ना जाए एक्सेस प्रोग्राम में आते हैं और वो अपना जो मन का है, जो क्लासेस में उनकी बहुत बार बोले जाते हैं कि स्कूल में इंग्लिश टीचर्स ही नहीं है 6 महीने तक, वो वाला जो सिस्टम उनके है तो वो बहुत मुझे लगता है इसलिए होता है कि शायद स्कूल में टीचर्स बहुत ज़्यादा उनका जो रूटीन दिया जाता है हर साल वही पढ़ाता रहना, क्वेश्चन आंसर्स करवाते रहना, तो वो सिस्टम टीचर भी शायद बोर हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हर टीचर को हर दिन एक प्रो करना चाहिए और कुछ नया इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी सीखें और टीचर्स भी सीखें। मेरे को, मैं जिस चीज़ में काम कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर आ जाती है। तो मतलब हमारा काम है सवाल खड़े करना, सवालों को पैदा करवाना स्टूडेंट्स के बीच में से और ख्याल की आज़ादी के लिए स्पेस देना या अपने रंगों के लिए अपनी आपके अंदर से क्या चीज़ फूट के आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो जया बात कह रही थी उसी को मैं सिर्फ आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारे पास ना कहीं क्रिएटिविटी की कमी है। जो डिटेंशन वाली बात है उसके अंदर अगर हर एक बच्चे के अंदर देखें तो उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसकी अपनी एक अनोखी खूबसूरती है जिसको हम कहीं पे स्पेस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो चीज़ है हमारा जो उसके फेल करने का और पास करने का मापदंड है वो एक बनाई हुई पद्धति के आधार पे हो जाता है। हर एक बच्चे के अंदर अपना एक अनोखापन है, उस अनोखेपन को सेलिब्रेट कर सकें, उस अनोखेपन को स्पेस दे सकें, उस अनोखेपन को उजागर कर सकें, वो हमारे पास एज ए टीचर, मैं इसमें टीचर को भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मान रहा हूँ कि वो फैसिलिटेटर कहीं पे उसको स्पेस नहीं प्रोवाइड हो रही है कि जहाँ पर वो उड़ सके, जहाँ पर वो उस चीज़ के लिए अपना रास्ता ढूंढ सके। मेरा नाम बल्कना है और मैं आगा खान फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ और अभी PhD कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो एक लीगल मुद्दा है नो डिटेंशन पॉलिसी का, तो एक एनालिसिस ड्रॉ करना चाहूँगी मैं। सिंपली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे देश में, पर हम ये नहीं कह सकते कि अभी भी पूरा डोमेस्टिक वायलेंस घरों में है, despite the fact that there is an act to prevent domestic violence, right? So, but we cannot blame the act for domestic violence. Similarly, if there is a no detention policy, we cannot blame the no detention policy for the failure of children, right? What's happening, right? जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी ये हो रहा है कि जो failure हो रहा है larger education system का,
है नो डिटेंशन पॉलिसी पे, बिकॉज एक लीगल राइट है बच्चे का कि पढ़ाई करना, सो हाउ कैन यू ब्लेम अ राइट ऑफ अ चाइल्ड for the period of the whole system? So that's what my thing is, that you know, obviously there will be people, there will be children who will take time to learn, and बहुत दिक्कत होगी कुछ बच्चों को सीखने में, क्योंकि उनके पास जो सीखने का जरिया है वो नहीं है, सीखने का जरिया ही नहीं है, खराब है जैसा भी जरिया भी नहीं है। कि हम लोग शायद एक हक और एक पॉलिसी में कुछ अंतर नहीं कर रहे, और अभी हम बात नो डिटेंशन की बात कर रहे थे, तो इसलिए करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग और इस सब में बहुत कुछ कहने को है, जिंदगी भर का काम है, पर अभी उस पर बात नहीं की, क्योंकि फोकस ये था कि पहले इस मुद्दे को समझ लें और इस मुद्दे को कैसे आज यूज भी किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, और उसी हक को फिर उसका संशोधन करना या उसको हटाने, उसकी बात करनी। जैसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मिड डे मील का हक मिला था बच्चे को, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत शक था। कई स्टेट्स ने शोर मचाया, राजस्थान में शोर मचा, कैसे कई कम्युनिटीज ने कहा, कई जात के बच्चों ने, माँ बाप ने कहा हम खाने नहीं देंगे उनको वहाँ, क्या हम खाना नहीं भेज सकते इनके साथ। तो बहुत और सामाजिक जो है बाधा, बहुत सामाजिक जो जकड़न में समाज है वो सामने आया, पर वो हक है। और इसलिए कर्नाटका ने ये भी कहा कि जो खाना पकाने वाली होगी महिला, वो एक दलित महिला होगी, और ये इस तरह इसका क्रियान्वयन किया। तो ये जरूर है, आज समाज हमारा जितना बटा हुआ है, 20 साल पहले से आज ज्यादा बटा हुआ है, चाहे वो जात है चाहे वो धर्म है। इसको अगर रोकना है, जो हमारा संविधान कह रहा है, तो वो हक जो है उसको मानना है, क्यों वो हक आया है। अगर 60 साल तक हमारा इतना नहीं बढ़ जाता समाज कि एक सरकारी स्कूल में बटे हुए दिखते, गरीब बच्चे को गरीब स्कूल मिलता है, कुछ और संसाधन वाले बच्चे को केंद्रीय विद्यालय मिल जाता है, प्रतिभा विकास विद्यालय मिल जाता है, तो ये जो समाज बढ़ गया था और सरकारी तंत्र में भी बढ़ गया था, इसको रोकने के लिए, और वो जो 25% की बात है वो भी समाज के लिए था। ये नहीं कि बच्चों को हम महंगे स्कूल में भेज रहे हैं, नहीं, जो समाज, संपन्न समाज के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए उनको गरीब सामान्य समाज से आए हुए बच्चों के साथ सीखना होगा, कि उनकी शिक्षा का एक हिस्सा होगा। ये बात थी इस हक की, इसलिए मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो हेमा ने कहा कि हमारे विचार, इसके विचार, हम कैसे टीचर्स के विचार, इसमें ये सवाल नहीं है। हम सब टीचर्स के साथ काम करते हैं, टीचर्स की किस तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो उससे भी जूझ रहे हैं, उनके विचारों से जूझ रहे हैं, उस पर हमारे स्टूडेंट्स भी शोध कर रहे हैं, पर अभी वो मसला नहीं है। तो बहुत साफ कहना चाहती हूँ, जो ये हक है, और इस हक का हिस्सा है कि जब आधे बच्चे हमारे 5वीं 6वीं तक छट जाते थे, तब क्यों कोई विचलित नहीं होता था, तब क्यों कोई टीचर नहीं बहुत दुखी हो रहा था, या कोई प्रिंसिपल दुखी नहीं हो रहा था कि अरे सारे बच्चे तो छट गए, हमारे बच्चे कहाँ गए, कौन सा स्कूल उनको दे रहा है, क्यों नहीं गए, क्यों निकल दिया उनको, क्यों किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो जब हम बहुत संतुष्ट हैं कि बच्चे छट जाए, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी है, हमारी मानसिकता ये पहले दिन से कि जब तक हम चयन ना करें, जब तक हम सिलेक्शन ना करें, जब तक हम कंपटीशन ना करें, शिक्षा में कंपटीशन कभी नहीं आता, किसी थ्योरी में नहीं आता। सीखने की थ्योरी में कंपटीशन सबसे घातक शब्द है। जब आप कंपटीशन क्रिएट करते हो, आप भले से भले कॉन्फिडेंट व्यक्ति का परफॉर्मेंस गिरते हुए देखते हो, सब हमारी थ्योरीज बताती है, पर हमारा समाज नहीं, कंपटीशन की वजह मेरे बच्चे बेकार हो जाएंगे, टीचर्स कहते तो हमारा समाज ऐसा बन गया है कि वो मानता है कि हमारे कुछ संसाधन कम है, और सिर्फ कुछ लोग उनको छीन कर उन पर बैठ जाए, उन पर कब्जा जमाए। और जितने खासकर दक्षिण एशिया एक देश है जहाँ है गरीबी, जहाँ संसाधनों की कमी है, वहाँ जो भी मध्यम वर्ग के अंदर आते जाते उनको लगता है कि हमारा हक है कि हम इस पे कब्जा बना लें, और इसलिए सबकी सीखने की बात करने का, उसको
गरीब है या कोई कितनी दूर है या कोई आदिवासी है, हम कैसे कह सकते हैं कि उसके माँ बाप का की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल पहुंचे या ना पहुंचे? हम अगर वास्तव में टीचर है, वास्तव में एजुकेटर है, तो हमारा दिल क्यों नहीं पहले सबसे पहले धड़कता कि हमारे आधे से ज्यादा बच्चे तो 8 साल में नहीं करते, तब हमने कोई शोर नहीं मचाया था और तब हम कोई नहीं पूछ रहा था कि 5वीं में जाके कितना सीख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अपने दिमाग से कुछ बोल पा रहे हैं कि नहीं, क्लास में खड़े होके कि भी बोल पाते हैं कि नहीं, किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? आज हम कह रहे अरे तीसरे का बच्चा दूसरे का नहीं पढ़ सकता। ये सब बहुत ही प्रॉब्लमैटिक तरीके हैं, बहुत प्रॉब्लमैटिक आंकलन के तरीके हैं जिनको लाया जा रहा है, बल्कि आरटीई को अटैक करने के लिए लाया जा रहा है। और मैं साफ कह रही हूँ, तो अगर हम हक की बात करते हैं तो पहले हक की बात समझ लें। इसमें ना मेरा ना तुम्हारा है, ना मेरा व्यू है कि मैं किसको सोचती हूँ किसको हक होना चाहिए। ये सभी के हक की बात है जो बहुत पहले आनी चाहिए थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम क्यों आया था ये आर्टिकल भी 45? इसलिए क्योंकि हर एक को वोट देने की हक की बात हुई थी। पहले इसमें भी शक था कि सबको दिया जाए या नहीं दिया जाए। और देशों में 40 साल पहले महिलाओं को हक मिला, अमेरिका में भी बहुत अभी मिला है वोट करने का हक। हमारे देश में डेमोक्रेसी के अंदर ये कहा गया था, इस बहस में आया था कि नहीं, गरीब हो, पढ़े हो, न पढ़े हो, दूर दराज हो, कहीं बैठे हो, पहाड़ पे कहीं भी, हर एक को हक मिलेगा, क्योंकि तभी एक लोकतंत्र बनता है। लोगों ने कहा पर लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। लोगों ने कहा अरे सिर्फ 10%, 12% साक्षर भी है, कैसे हम वोट देने का हक दे सकते हैं? उस समय पर ये आर्टिकल 45 इसलिए आया कि अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं कि वो हर एक का हक है, तो सरकार हर एक को शिक्षा देने का की जिम्मेदारी उठाएगी। नहीं उठाई, हमसे भी, हमारे भी किसी का दिल नहीं बसेगा। किसी ने नहीं कहा कि क्यों इतने बच्चे नहीं आए स्कूल में। अब जब हक आया है तो उस हक पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो क्या नियत दिखा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि नहीं। एससीईआरटी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी सबसे पहले जब ये इम्प्लीमेंटेशन की बात आई थी। एज दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने कहा हम एससीईआरटी के साथ बात करते हैं कि इसमें क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि एससीईआरटी नोडल सेंटर है इस पूरे स्टेट का। तो एससीईआरटी से पूछा कि ये इस पे लिखा है कि अगर बच्चे 10 साल के भी आए, 9 साल के भी आए, तो उनके लिए किस तरह की ट्रेनिंग टीचर्स को मिलनी चाहिए और उनको हम किस तरह से, उनके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग। राइट ने ये कहा कि उनके लिए भी अलग से, और कई संस्थाएं कर रही हैं, उनके लिए अलग से कुछ हम ट्रेनिंग करें क्या? तो एनसीईआरटी से हमने पूछा कैसे हम करेंगे। तो एससीईआरटी का सबसे पहले हमें जवाब मिला, जब वो आएंगे पहले दिन हम टेस्ट लेंगे। तो हमने कहा कि हम टेस्ट से आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। अगर लेना भी है तो वो क्या जानते हैं, बिना लिखने के और पढ़ने के कितना कुछ जानते हैं, क्या उसको आंक लें? जैसे मेरे ही कई स्टूडेंट्स जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि ये बहुत टेस्टिंग की बात चल रही है, क्यों नहीं एक टेस्ट लेते, दिल्ली में सब बच्चों को एक जगह ले जाइए और सब बच्चों को कहिए कि जाओ अपने घर पहुंचो। उन्होंने कहा हम दावे से कह सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के सारे बच्चे घर पहुंच जाएंगे, और हम दावे से कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे फोन को टटोलते हुए, रोते हुए मिलेंगे। तो आप किसको कह रहे हो, किसकी आप क्षमता को आंक रहे हो? क्यों नहीं इस क्षमता में क्या क्या क्षमताएं नहीं थे कि एक बच्ची अपने घर पहुंच गई इस शहर में जिसमें बड़े लोगों को भी डर लगता है, हमें भी डर लगे कि हम नई जगह कैसे जाएं, हम नहीं जानते इस इलाके को। वो बच्चे अगर घर पहुंच गए तो जरा गिनती कर दीजिए, लिस्ट बना दीजिए कि क्या क्षमताएं हैं उनमें और क्यों उन क्षमताओं को पहचानते तक नहीं है। तो ये सवाल क्यों नहीं हम पूछते? हमने ना वो स्पेशल ट्रेनिंग्स का पे काम किया, ना हमने टीचर्स की ट्रेनिंग्स पे काम किया। मैं मानती हूँ टीचर्स के साथ बहुत काम होने की जरूरत है, पर आज हम सिर्फ बच्चे को डिटेन करना, उसको रोक देना आगे बढ़ने से, और ये एक्ट कह रहा है कि उसका हक है सीखना। अगर हम इस सिस्टम में हैं तो हम इंश्योर करें जिस भी तरह से वो सीख सके।
चाहे उसमें मोहल्ला साथ जुड़े, चाहे और लोग जुड़े, टीचर्स की मदद करें, कौन कैसे करे, रेमेडियल ना कहें क्योंकि रेमेडी सिर्फ बीमारी का उपचार होता है और ये बीमारी नहीं है कि किसी ने नहीं सीखा, तो वो रेमेडियल नहीं होगा, वो उसके लिए भी एनरिचमेंट होगा जैसे किसी और के लिए एनरिचमेंट है। तो हम ये शब्दावली को इंक्लूसिव बनाएं, एक हक से जुड़ती हुई शब्दावली बनाएं और फिर देखें आगे कि हमारा सिस्टम, हाँ इस सिस्टम के साथ तो बहुत काम करना है, वो कभी नहीं कह रहा, पर आज तक क्यों इस सिस्टम ने कभी नहीं पूछा। टीचर्स की क्लास में, मैं देश भर में सैकड़ों क्लासेस में गई हूँ, टीचर्स को अगर हम पूछें कि आपके बच्चे क्या क्या जानते हैं, ठीक है पढ़ने लिखने में भी कितने बच्चे लिख लेंगे, कितने, टीचर्स कोई नहीं बताते आपको। तो ये कहना सर कि एग्जाम ही बताता है कि बच्चे का स्टेटस क्या है, कि बच्चा फेल हुआ कि नहीं, ये हमारी कुछ मानसिकता को बहुत बदलने की जरूरत है अगर बच्चे के हक को दिलवाना है। To start with, I'd say I agree with the words and the passion that Anita has just put out. आज हमने करिकुलम की बात बिल्कुल मार्जिन्स पे है in the context of no detention only, and that's why I just touched on it. कहने को तो it's not even 18 days जो आप कहते हो teacher development program and so on, it's much more. So let's not go too much into that end. लेकिन एक चीज मैं कहे बिना नहीं रह सकती, कहाँ गए लोकेश? चले गए? लोकेश वहाँ है। इन्होंने एक बात छेड़ी है, एक्स्ट्रा करिकुलर। देखिए करिकुलम बाय डेफिनेशन है, आई थिंक सबको पता है करिकुलम क्या है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। Extra is curriculum are all the transactions that the learners share with each other or the teacher, all of the transactions that they have inside and outside. So extra is nothing. It's offered and some take it, don't take it, but it is curriculum. Co is nothing. It's all curriculum. एक तो वो, दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, जब आप legal right is very dangerous attitude to take, particularly in a day and age where the parliament is trying to make any change possible in many things. Legality is determined by what the parliament passes. So it's a fundamental right, constitutional right of my existence. I, as existing here, have a right. Yes, it is not just elementary, it is to whatever, but I certainly have a right to determine how much I can and want to study, and I need to be able to get more, in fact, as I was saying, it's not just grading, but at least what is there. Regarding this whole business about detention, आप कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जरा एक सेकंड 10 सेकंड गौर कीजिए आप किस सिचुएशन में हैं। जहाँ तक आप लोग वर्किंग पीपल हैं, ज़्यादातर वर्किंग मीन्स यू हैव someone who is also assessing your work and so on, formally maybe in form of a promotion or not, but somebody comes and says, look, somebody else, the vice chancellor, the head teacher, the whoever, you're not delivering well. क्या हालत हो जाएगी आप लोगों के अंदर? किस हद तक मोटिवेट होंगे आप और वेल करने के लिए, बताइए मुझे। पर बच्चों की हम जरा नहीं सोच रहे। The level of humiliation that a person can get and not come out with it anywhere because if society is not online with you also, your parents are pushing you, तुमने कुछ गलत किया होगा तभी तो ये है। कई दफा ये हुआ ना, peers के साथ, peers matter at any age in those growing years. हमें भी peers matter करते हैं। So at any age in those growing years, if the peers are going to do ha-ha because they're not thinking too much, think about that. Regarding
this whole business of hair, I think some people have already touched on it. The NCF clearly says, not hair, fondness, interest, all the positive things. तो डिटेंशन की बात घटती ही जाएगी if all this is there. And it's not just कि teacher पे अब वो रखो force. For example, I'll tell you, in America, in Atlanta, I think Anita may be familiar with this case, which made it in all the American press. जितने लोग fail होंगे, the teacher is to be penalized accordingly. This was in America. The teacher cooked up results. We don't want that. So it's not about pressurizing, but it's also about sharing. Now we have teacher educators who are expected to go share and take this further. I come back to say what he was also trying to second. This is a generational change with each input coming in along the same lines. If there are cross connections and going in different directions, nobody is going to know what to do next. And maybe I'd just like to say something. Even the RTE Act did not include disability to start with. It is so unfortunate. Amendments had to be brought in later about how to help and support the disabled particularly. And यहाँ सबके margins में भी है. जहाँ मैं जाती हूँ, I see it's all just on the kind of yeah disability. And when I say inclusion, people say yeah you mean disabled. No, inclusion doesn't mean that. Inclusion means all, including disability and me with everybody, all of us together. And when people say, look, what will I have to do for the disabled? Let's find out, let's think of something to do. That's what was being said here. When autistic children are coming in, people from well-off schools, people meaning administrators are saying, okay, somebody's mobile is acting up. Okay. People from well-off schools are telling me, what do? I have an autistic child, now I'm supposed to bring somebody for support, now that will cost so much and all. Yes, this is towards society. I mean, you've taken on this profession, you want it treated as a profession and yet you're not behaving professionally. When it comes to, actually comes to the nurse. क्यों? Disability के लिए क्यों नहीं है हम सोच रहे उसी जोर से जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं. And finally, I just want to say, of course, I'm not going to get into more if exam shows it's failed, and then I've already, I think, touched on that. PR cover, जो कहा है. Yes, I admit the government sector doesn't do enough for PR, but NCERT on its own does not have as much as you think that it can go and do PR, because the media is driven by what it thinks it gets TRPs with. So therefore there's a lot of colorful. For example, when I resigned, they all tried to make it into a big, that would have, if I had gone on record and gone on to interviews, I didn't want that. But they didn't want to see what NCERT has done or what I as NCERT had done and get into all that. So they want that. Now, for example, when we, under the National Assessment surveys, we were getting in grade 3, in grade 5, grade 8, that is done. We were getting results that were showing that inputs were helping, whatever inputs, and there were improvements in the grade 3. Marginal improvements, statistically taking them more than significant improvements were there. And yet, as much weightage was not given, but Rukmini Banerjee's NGO, what's it called, ASAR, where they said, no, they can't learn, no, they can't say anything, no, they can't say. What doesn't work? ASAR studies, no? No. But we were countering them.
So, even today, yesterday when I was looking at the website, I found a lot of private organizations, their studies or surveys or whatever were there. The government studies were not on the TE India website, the MHRD. That's, and then you say, why doesn't NCRT do all this? Well, there comes the motivation and demotivation also, and one can see where the various groups are moving in and trying to push, and why there is a lot of this no detention push. I come back to saying, I want to end with, education is about politics. That it's a field of politics, whether it is personal or class politics and so on. It is that game going on. If we allow it to happen, each of us is guilty and party to that. The curriculum in India is overloaded. Basically, I'm just giving my own personal example. My own friend who got a job in Germany, he was taking his child who is studying in class 3 to Germany. So his wife came to NCRT, purchased textbooks of class 4, 5, 6, 7, 8. Then I asked her, see, you are going to Germany on an assignment and you are going to be in a job which is a highly powerful job in an embassy, and you are also going to get your daughter admitted into the best school in Germany. Then why are you taking all the NCRT textbooks? She was saying that her friends in Germany said that when the child or when the family comes back after 5 years and they may not be able to pass class 8 examination of India. They said that Indian syllabus, Germany syllabus is second rate. So that is the kind of statement she said actually. You can see that the kind of curriculum, the NCRT curriculum or whatever the state Indian curriculum is highly overloaded. So by conducting examination based on this overloaded curriculum, we want to retain the child or we want to send the children to work as child laborers, we have to rethink about it. And secondly, I'm sorry that Supreme Court has done one thing in the name of midday meal scheme, whereas Supreme Court also does sometimes injustice to the children. I'm giving you one example from NCRT. There is one NGO called Hindi Matrabhasha Parishad in Delhi. They wrote a letter to NCRT 20 years before that you are not using a Shuddh Hindi in your textbooks. We wrote back saying that the NCRT textbooks are children's textbooks and we use the words which are used in the common day-to-day life. Then they were controlling, no, bachche ko thoda pure Hindi you have to introduce. So they keep writing to us, we try to specify them, telling them, and then finally at a particular point of time, very crucial time, they went to court. Again we went to the court also, from the lower court to the high court and the Supreme Court. NCRT also went again to the court. And then finally, Supreme Court, I'm sorry, stupidly made a verdict. I'm sorry, saying that NCRT textbooks should be based on the terminology brought out by the Council for Scientific and Technical Terminology. Because this Hindi Matrabhasha Parishad said that CSTT is also part of the MHRD, which is another sister organization. So Supreme Court told NCRT, ये आपका sister organization है, उनको glossary use करके आप textbook पढ़ा सकते. And if you look at the glossary produced by the CSTT, it is, see for example, whenever the new things coming for computer, all the new terms, terminologies have to be evolved by any country or many experts. So what happened, the CSTT involves, again I am not knowing much about Hindi or Sanskrit, but they invite people more of a linguistic background and particularly Sanskritized. So what they do, that glossary contains more highly Sanskritized, non-familiar words. So अभी आ गया हमको Supreme Court judgment आ गया. That means all the NCRT people should strictly follow NCRT like Supreme Court judgment by following CSTT dictionary. Today if you go to see NCRT textbooks of science, mathematics, social sciences, you will find many unfamiliar words. Many familiar words which is not used by the, this is not the case with private textbooks. Only with the textbooks brought out by the central government. So what happened, इतना मेहनत करके 2005 के बाद हम नया टेक्स्ट बुक लिखा है, लेकिन उसमें शब्द पूरा जटिल शब्द है. मैं अभी उत्तराखंड गया था, हरियाणा, I get 3 states I went, at least 50 schools in say Uttarakhand and Haryana, and 200 teachers in say Jharkhand. All the tastes are using NCRT textbooks 100%. Almost all the teachers are saying, sir, ये पूरा शब्द पूरा जटिल शब्द, हमारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा. Everybody against the
children studying in government schools. They want to fail them or they want to send them home. If we are all closing down all the schools, because fail करेंगे तो बच्चे का number कम हो जाएगा school. By Pratham survey, you are saying that the children are studying of class 3 the statistics. By telling them every year कम से कम 2 लाख number बढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में. तो सारा स्कूल को बंद हो जाएगा, तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा. उसके बाद this will be PPP mode or private mode. So all these properties will be sold. Okay, so we have to think about in a longer term, not simply the case of the shorter term. Thank you. मेरे ख्याल से जो अब तक की जो वार्तालाप हुई है उसमें ऐसा ही बात निकल कर आई है कि जो डिटेन वाली बात थी उसको जो मैडम ने भी सभी लोगों ने भी बात बताई कि ये शब्द जो है अपने में बड़ा यानी फेल होना बहुत ही ख़राब महसूस होता है. ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए कर भी क्या सकते हैं, क्या किया जाए. लेकिन हमारे एक भाई ने जिन्होंने अभी जिक्र किया इसके बारे में कि अगर बल्कि उन्होंने आंकड़े बताए अपने कि पूरे देश में अगर आप दिल्ली की भी बात करें तो कितने सारे स्कूलों की लिस्ट सामने आ जाएगी. और टीचर्स की भी उन्होंने आंकड़े बताए कि कितने % टीचर्स की कमियां हैं स्कूलों के अंदर. तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर NCERT बड़ा अच्छे से काम कर रही है पूरे देश में और अच्छे से काम करे और बहुत ही यानी जो टेस्ट बुक की बात कर रहे हैं उसको आसान लैंग्वेज में अगर लाया जाए. वैसे हमारी MCQ में जो इंग्लिश की बुक है वो भी बहुत हार्ड है. कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने लिखा मिनिस्ट्री को कि इसको हटाइए, राजस्थान ने तो बिल ही पास किया कि हमने अमेंड कर दिया. अभी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ऐसा नहीं कर सकते, स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चे को डिमोटिवेट करेगा, फेल नहीं कर सकते. पर ये अभी कुछ ही समय के लिए है, अभी मालूम नहीं जब तक हम लोग सब मिलकर इस चीज़ को आगे नहीं ले जाएंगे, इसकी आवाज़ नहीं आगे ले जाएंगे, फिर कहीं भी कुछ महीनों बाद सेंट्रल लेवल पे अगर वो करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई हक आता है उसके अमेंडमेंट्स फिर इस तरह से जब आने शुरू हो जाए तो बहुत फिर घातक हो सकता है. तो मुझे लगता है कि ये जो अभी यहाँ हो रहा है हम सब अपने अपने स्तर पे इसी संवाद को आगे बढ़ाएं कि कम से कम ऐसा न होने दें कि हम बच्चों को फेल करेंगे, ऐसा कहीं भी सेंट्रल लेवल पर ये लाए.